Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the world of mathematics, and your teacher is Hamad Hussain. Today we are going to discuss chapter number 3, Integration of class second year. Today our topic is integration. Integration. As we know that integration is the reverse process of derivative. Integration is the reverse process of derivative and its symbol is in this form. This is the symbol of integration. Now, definition: integral calculus. Integration is the inverse process of differentiation. Integration is the inverse process of differentiation or derivative. Instead of differentiating a function, we are given the derivative of a function and asked to find its primitive, the original function. Such a process is called integration or antiderivative. Reverse process of differentiation or derivative is called integration, and we have given a derivative and asked to find its primitive or the original function. The method to find the original function from the derivative is called integration or antiderivative. Now we will discuss its geometrical. Introduction to integration. Integration is a way of adding slices to find the whole. Second example definition of integration is area under the curve. Second definition of integration is area under the curve. Now we will discuss how integration means area under the curve. Integration can be used to find the area, volume or central point and many useful things, but it is easiest to find the area under the curve of the function like this. If we have a function f of x and we have asked to find the area or the yellow shade, then we will use integration. What is the area under y is equal to f of x? That is question mark, and the method to find the area under the curve is called integration. Integration is way of adding slices to find the whole. Slice means that we could calculate the function at a few point and add up slice of the width delta x like this. We have a function f of x and we make it multiple slices of rectangular blocks. Multiple slices of rectangular block. One slice mean delta x or the width on x axis. On delta x or on the width of the x axis. Delta x, delta x, delta x, delta x rectangular blocks. We can make delta x a lot smaller and add up many small slices. We reduce the size of the width or the on the x-axis delta x. You can see the multiple slices under the curve. And as the slice approaches 0 in width, in this figure, suppose that the width of slice is 2 centimeter, then on this figure assume that slice width is 1 centimeter or 0.5 centimeter, and if slice approaches 0 in width and if width is approaches to 0, then answer approaches to the true solution. Answer approaches to the true solution, and we know that delta x is equal to dx. We now write dx to mean delta x slice approaches 0 in width, and if slices where length reduces and approaching to 0, then delta x will be equal to dx. Then delta x will be equal to dx. Notation: the symbol for the integral is a stylish S. Is the stylish S for sum of all the slices. The idea of summing slices. Idea of summing slices. Suppose that we have to find the integration of 2x. Integral 2x dx. This is the integral symbol,
and 2x the function we want to integrate, and dx means slice along x-axis. Dx means slices along x-axis. After the integral symbol, we put the function to find the integral of called the integrand, and then finish with dx to mean the slices goes on in the x direction and approaching width is 0. And here how we write the answer. Integration of 2x ds is x square plus c. X square plus c. What is mean by plus c? We wrote the answer x square but y plus c. Students, आप यहाँ देख सकते हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 2x होता है। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमने बताना होता है कि ये जो फंक्शन है ये किसका डेरिवेटिव है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये किसका डेरिवेटिव है, तो वो किसका डेरिवेटिव है, हमारे पास x का। तब हम आगे जाके देखेंगे कि ये कैसे x की इंटीग्रेशन हमारे पास x स्क्वायर आती है। इंटीग्रेशन होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल और एक होती है हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये जो हम लोगों ने इनमें सारों में एरिया फाइंड किया था, यहाँ हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। इधर भी हमारे पास एक्स एक्सिस जस्ट जनरल बताया गया है कि एक्स एक्सिस पे हम लोग स्लाइसेस बना रहे हैं, पीसीस बना रहे हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन था, इसके अंदर का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसके छोटे छोटे पीस बना देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, सम ऑफ पार्टीशन ऑफ फंक्शन इसमें कर देते हैं और उसको क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स कहते हैं। पहले में हम लोगों ने ज्यूम किया कि ये जो दोनों स्लाइस के दरमियान एक स्लाइस की जो विड्थ है वो ज्यूम कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ आके हमने उसकी विड्थ को रिड्यूस कर दिया तो ये 1 सेंटीमीटर की बहुत ज़्यादा बन गई। फिर जब हम इसको और रिड्यूस करते जाएंगे और रिड्यूस करते जाएंगे और एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये फिर डेल्टा एक्स को हम लोग क्या कह देंगे, डी एक्स कह देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे कोई लिमिट गिवन नहीं है। तो हमारा जो आप लोगों का लेवल है इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ हमारे पास लिमिट्स नहीं होती। जब डेफिनेट इंटीग्रल आएगा हायर लेवल पे तो यहाँ हमारे पास लिमिट होती है, यहाँ लोअर लिमिट आती है, यहाँ हमारे पास हायर लिमिट अपर लिमिट उसको कहते हैं आती है। तो ये हमारे पास है कि ये जो 2x है ये किसका डेरिवेटिव है, ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो 2x किसका डेरिवेटिव होता है, हमारे पास x स्क्वायर का होता है और साथ हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस c आता है। अब ये प्लस c क्या है, plus c, we wrote the answer x square but why plus c? In it is the constant of integration. It is there because all the functions whose derivative is 2x. अब देखें जी, हमारे पास ये x स्क्वायर है, इसका भी डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसका भी डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं, 2x आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, इसका भी डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि 2x जो है वो इनमें से किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है। अदर एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का है, या एक्स स्क्वायर माइनस 6 का है। तो मल्टीपल एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 is 2x, the derivative of x square plus 99 is also 2x, and so on, because the derivative of constant is 0. So when we reverse the operation to find the integral, we only write 2x, but there could have been a constant of any variable, so we wrap the idea by just writing plus c at the end. तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग सिंपल उसके साथ क्या लगा देते हैं, c। यहाँ c क्या होगा, 0, यहाँ क्या आ रहे हैं 4, यहाँ क्या आ रहे हैं 3 और यहाँ क्या आ रहे हैं -6। तो c को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ ये था जी हमारे पास एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, यहाँ मैंने क्या लिखा आपके पास, एक्स स्क्वायर का। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भी डेरिवेटिव लो तो वो भी कितना आता है, 2x आता है। तो आपका आंसर ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 99 का भी लो तो उसका भी 2x आता है। तो हमें नहीं पता, तो वो जो नहीं पता उसको हम लोग कवर कर देते हैं प्लस c लिख के, तो वो c उसमें कवर हो जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं अगर हम इसका इंटीग्रल लें तो ये सारे बनते हैं, और अगर इनका हम लोग डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है, 2x आता है। तो ये हमारे पास एक साइकिल बन रहा होता है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन।
Now, example, tap a tank. Integration is like filling a tap from a tap. Filling a tank from a tap. The input before integration is the flow rate from the tap. Is the flow rate from the tap. Integrating the flow, adding up all the little bit of water give us the volume in the tank. Give the volume in the tank. So integrating and derivative are opposite. 2x इंटीग्रल इज x स्केयर एंड x स्केयर डेरिवेटिव इज 2x. इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले बताया था कि ये सम करती हैं तमाम स्लैसेस को, तमाम चीज़ों को सम करती है। इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो भी एस को जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो सम बनता है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की एग्जांपल है कि जब हम लोग किसी भी टैंक में नल के से पानी डालते हैं तो ये जो पानी हमारे पास जा रहा है, फ्लो रेट जा रहा है, the input before integrating is the flow rate from the tap. The integrating the flow, adding up all the water. ये जो सारा वाटर हमारे पास इकट्ठा हो रहा है ये हमारे पास क्या हो रही है, इंटीग्रेशन। ये पीसेस करके आ रहा है और ये सारा वाटर जो है हमारे पास क्या है, गिव अस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। इंटीग्रेटिंग द फ्लो, तो ये फ्लो रेट जो है ये डेरिवेटिव हो गया। जब हम इंटीग्रेट करते हैं फ्लो को, मतलब सारे फ्लो को इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, सम करते हैं, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं कि हमने पानी की इंटीग्रेशन कर दी। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। पावर रूल से हमें पता है इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 3x स्क्वायर। और जब हमें यह हो कि 3x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन है तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, एक्स क्यूब प्लस सी। अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि ये एक्स क्यूब क्या होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ गया जी 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस सी। इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा हम लोग आंसर में प्लस सी लिखेंगे। ये चंद एग्जांपल्स हैं और साथ उनके मीनिंग्स हैं। अगर वहाँ पर लिखा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेंट होता है। एक्स जो है वो हमारे पास है जी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह हमारे पास एन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन है, द फंक्शन एफ सच दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब कि ये जो है ये किसका डेरिवेटिव है, तो वो हम लोगों ने एफ फाइंड करना है, किसका डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन क्या आ जी, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जी एनी रियल नंबर सी कंसिडर एज द कांस्टेंट फंक्शन। दीज आर द सिंबल्स एंड मीनिंग्स। Now, indefinite integral, there are some common formulas, means that integration of constant function is constant function as it is with x plus c. Integration of x raised to power n dx is x raised to power n plus 1 over n plus 1 plus c. Integration of 1 over under root x dx is 2 under root x plus c. Integration of 1 over x ds is natural log or log of x plus c. Integration of ex ds is e raised to power x plus c. And integration of a raised to power x dx is a raised to power x over log a plus c. These are the some general formulas. Now, there are the two theorems on antiderivative of or integration. First one is the integral of the product of a constant and a function is equal to the product of constant and integral of the function. In symbol form, integration of a f of x dx is a integration of f of x where a is constant. सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये कहते हैं कि जैसे डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव अगर हमारे पास होता है 5x स्क्वायर तो 5 बार आ जाता है। डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ x स्क्वायर पे। तो सिमिलरली कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाएगा। ये भी एक ऑपरेटर है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑपरेटर होता है। ए कांस्टेंट से बाहर आ गया और इंटीग्रेशन से किस पे अप्लाई होगी, फंक्शन पे अप्लाई होगी, जैसे डेरिवेटिव पे होती थी या लिमिट्स पे होती थी। सेम प्रोसीजर है, जो हमारे पास कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। द सेकंड है जी, द इंटीग्रल ऑफ द सम और द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ देयर इंटीग्रल। सिंबॉलिक इंटीग्रेशन ऑफ f1 of x plus minus f2 of x dx will be equal to integration of f1 of x
प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2 ऑफ x। अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उन पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हैं तो दोनों फंक्शन पर अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करके हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी दो एक प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं या हम इनको कहते हैं थ्योरम ऑन एंटी डेरिवेटिव। नाउ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। फर्स्ट वन है जी, ये अब आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से लिखना है। फंक्शन f ऑफ x रेज टू पावर n विद f प्राइम ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x n रेज टू पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन प्लस c वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। इन सिंपल वर्ड, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर आ रही है और फंक्शन के साथ डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, फंक्शन है और उसकी कोई पावर आ रही है अदर देन -1, फंक्शन है उसकी कोई भी पावर आ रही है और साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो आंसर इसका क्या होगा? फंक्शन की पावर में एक ऐड होगा, उसी से ही डिवाइड होगा और प्लस सी आएगा। फंक्शन की पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा और साथ आंसर में क्या आएगा? प्लस सी। बट कंडीशन ये है कि यहाँ हमारे पास पावर -1 नहीं होनी चाहिए। अगर फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव है और फंक्शन की पावर -1 के अलावा कोई भी है तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड प्लस सी। अगर पावर -1 हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर पावर यहाँ -1 आ गई तो ऊपर तो आ जाएगा f डैश ऑफ x, तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। यहाँ था फंक्शन है और साथ डेरिवेटिव है तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड प्लस सी। और अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। इंटीग्रेशन उसकी क्या होगी? नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी हमेशा लाजमी आएगा क्योंकि हम लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल को। e रेज टू पावर ax dx इंटीग्रेशन इसकी क्या होगी? इसकी होती है e रेज टू पावर ax और डेरिवेटिव आ जाएगा ax प्लस सी। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते थे e रेज टू पावर ax का तो क्या होता था? e रेज टू पावर ax और साथ मल्टीप्लाई होता था डेरिवेटिव किसका? पावर का। तो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई नहीं होगा, इंटीग्रेशन में पावर का डेरिवेटिव क्या होगा? डिवाइड होता है। इंटीग्रेशन में पावर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? डिवाइड होता है। इंटीग्रेशन ऑफ वन किसका डेरिवेटिव है? सिंपल अल्फाज में वन किसका डेरिवेटिव है? या इंटीग्रेशन ऑफ वन हमारे पास क्या होती है? x होती है। इंटीग्रेशन ऑफ वन हमारे पास क्या होती है? x। या वन किसका डेरिवेटिव है? वन किसका डेरिवेटिव है जी? हमारे पास वन x का डेरिवेटिव है और प्लस c लाजमी आएगा। तो ये फार्मूलाज थे हमारे पास जो पूरी एक्सरसाइज 3.2 में यूज़ होंगे। पहला ये है जी, फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव है और फंक्शन की पावर -1 के अलावा कोई भी है तो क्या होगा? पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड प्लस सी। सेकंड ये है कि अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है तो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। अगर e रेज टू पावर ax में a का मतलब आपको पता है कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो e एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव में हम लोग साथ मल्टीप्लाई करते थे पावर के डेरिवेटिव को, तो यहाँ हम लोग डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है? x प्लस सी। नाउ we will move to exercise number 3.2. Question number 1. Evaluate the following indefinite integral. First part is integration of 3x square minus 2x plus 1 dx. 3x square minus 2x plus 1 dx. अप्लाई करेंगे कि इंटीग्रेशन 3 बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर पे, -2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी x पे और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये रूल हम इसमें यूज़ करेंगे अगर फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, x है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर को छोड़ दें आप, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? 1, तो साथ मौजूद है हमारे पास। इस तरह x है, पावर को छोड़ दें, साथ इसके क्या आ रहे हैं? 1 मौजूद है। जब फंक्शन है साथ इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दिस रूल तो पावर में एक ऐड कर देंगे 2 + 1 डिवाइडेड बाय भी क्या हो जाएगा?
टू प्लस वन, माइनस टू बाहर ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पावर हमारे पास वन आ रही है, जब भी माइनस वन के अलावा जो भी पावर आएगी हम लोग उसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है वन, तो हमें साथ लिखते नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड, और वन डी एक्स, तो वन डी एक्स का मतलब हो गया डी एक्स, और डी एक्स इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है एक्स, और जब इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो गया हमारे पास आ गया सी, और अब ये सी आखिर तक चलता रहेगा। तो टू प्लस वन इज़ थ्री डिवाइडेड बाई थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस एक्स प्लस सी। 3 and 3 cancel out, 3 and 3 cancel out. Answer is x cube minus x square plus x plus c. X cube minus x square plus x plus c. If we take the derivative of this equation, we will get 3x square minus 2x plus 1. Second part. Integration of square root of x plus 1 over square root of x dx. Square root of x can be written as x raised to power 1 by 2 plus 1 over square root of x can be written as x raised to power minus 1 by 2. Apply integration on both function. Integration of x raised to power 1 by 2 plus integration of x raised to power minus 1 by 2. What is the derivative of 1? Derivative of x is 1. So we can apply this rule, power rule function with its derivative. Then power प्लस वन डिवाइडेड बाय पावर प्लस वन। फंक्शन का सारा डेरिवेटिव पड़ा हुआ है हमारे पास, x का डेरिवेटिव क्या आता है वन, इसी तरह इसमें भी x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है वन। तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से ही डिवाइड, इसी तरह पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से ही डिवाइड। इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो गया तो अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा प्लस सी। तो अब x रेज़ टू पावर 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2। तो x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2। तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख देंगे 2 बाई 3 एक्स रेज़ टू पावर 3 बाई 2 प्लस 2 एक्स रेज़ टू पावर 1 बाई 2 प्लस सी। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। ये था आपके पास पार्ट नंबर 2। नाउ पार्ट नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 2x square root or under root can be written as x raised to power 1 by 2 plus 1। सब पे अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1। अगेन यहाँ x है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 1, तो साथ पड़ा हुआ है तो पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड 2। अब ये x है, पावर को छोड़ दें, माइनस 1 के अलावा है तो x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है तो पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस सी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 ओवर 3 बाई 2 प्लस x प्लस सी। तो जब हमें रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 ओवर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस x प्लस सी। पार्ट नंबर 8, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस इंटू y प्लस 1 ओवर y डी वाई। तो लाजमी नहीं है यहाँ हमारे पास x ही हो, तो यहाँ हमारे पास कुछ भी हो सकता है y। अब आगे आप जाके देखेंगे हमारे पास थीटा वाला क्वेश्चन भी आता है। तो रूल्स प्रोसीजर सब कुछ सेम है। y को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम इसको लिख रहे हैं, लिखे इस वजह से रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला स्क्वायर रूट इस एक पावर के साथ कैंसिल आउट होकर बाकी बन जाएगा y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y डी वाई। तो दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड कर देंगे, y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y। तो y की पावर 1 है और इसकी पावर 1 बाई 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगी y रेज टू पावर 1 बाई 2 y रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2। दोनों पे अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब देखें जी y है और साथ आ रहा है डी वाई, तो y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ गया 1 साथ मौजूद है तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से ही डिवाइड। इस तरह y है, पावर माइनस 1 बाई 2 है, साथ y का डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड। तो x रेज टू पावर 3 बाई 2, तो नीचे भी 3 बाई 2, x रेज टू पावर 1 बाई 2 ओवर 1 बाई 2 प्लस सी, रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख देंगे 2 बाई 3 y रेज टू पावर
3/2 प्लस 2y रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। देखें जी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास थीटा वाला। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा -1 होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अगेन हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर उसी से ही डिवाइड कर देंगे, साथ आ जाएगा प्लस सी। तो सबसे पहले हम इसमें स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर साथ डी थीटा आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ थीटा तीनों के साथ अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। ये थीटा की पावर 1 है, ये थीटा की पावर 1/2 है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस और बेस रूल अप्लाई होने के बाद बच जाएगा थीटा रेज़ टू पावर 1/2। ये थीटा और ये स्क्वायर रूट ऑफ थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा थीटा रेज़ टू पावर -1/2। अब ये थीटा है, जब इस पर इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1। तो इसमें भी पावर रूल लग जाएगा, पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड -2। और जब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आंसर 1 का आंसर होता है x विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव जब इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। y का 1 ऑफ डी वाई का आंसर होता है y और 1 ऑफ डी थीटा का आंसर हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन में हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, एंगल थीटा यूज़ हो रहा है। और -1/2 है तो थीटा की पावर, तो थीटा की डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड प्लस सी। 1 मौजूद होने का मतलब ये है कि यहाँ डॉट 1 लिख दें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में 1 मौजूद होता है। उसके बाद हमने इसकी कैलकुलेशन की, रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख दिया, हमारे पास आंसर आ गया 2/3 थीटा रेज़ टू पावर 3/2 -2 थीटा प्लस 2 थीटा रेज़ टू पावर 1/2 प्लस सी। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 1/2। स्टूडेंट्स अब देखें जी, यहाँ हमारे पास 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 1/2 आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 1/2 आ रहा है, मतलब कि ये हमारे पास फंक्शन है 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 2। क्या साथ यहाँ 2 मौजूद है, आंसर इज नो। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ये हम मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करें, क्योंकि पावर रूल में रिक्वायर्ड है कि फंक्शन का सारा डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, फिर पावर रूल लगता है। यहाँ फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस 3, तो इसका 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है 2 इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया 2, तो वो साथ मौजूद नहीं था, तो उसको बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, किसके साथ 2 के साथ। तो 2/2 हो गया, 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1/2। तो ये 1/2 बाहर ही रह जाएगा। अब ये साथ आ गया जी। अब देखें जी, ये फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अब हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल है जी, पावर रूल, x रेज़ टू पावर n dx है तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, पावर -1 नहीं होनी चाहिए, पावर 1/2 आ रही है। फंक्शन ये है 2x प्लस 3, साथ इसका डेरिवेटिव भी आ गया, तो अब हम इसीलिए इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर रूल क्या होता है, ये 1/2 तो बाहर ही पड़ा रहेगा, तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, और साथ क्या आ गया हमारे पास c। तो 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2, नीचे भी आ गया 3/2, ये 2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास आंसर आ गया 1/3 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। तो स्टूडेंट्स बस आप लोगों ने ये बात याद रखने के फंक्शन है। अब वो पिछले क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस थे जिनमें सारा डेरिवेटिव मौजूद था, तो अगर सारा डेरिवेटिव मौजूद ना हो तो हम लोग डेरिवेटिव को लेके आएंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी कांस्टेंट के साथ। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 over square root of x whole square, taking square on both side a square plus b square minus 2ab। तो स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर यहाँ के स्टेप में कट जाएगा।
स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर काट जाएगा और यहाँ -2 आ गया, अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। x है, x का डेरिवेटिव होता है 1, साथ पढ़ा हमें तो पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड। 2 है तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x और आ गया प्लस c। अब ये हमारे पास आ रहे हैं जी 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो हम इसमें सेकंड रूल यूज़ करेंगे कि फंक्शन है और साथ उसके डेरिवेटिव, फंक्शन है नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है। देखें जी x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है जी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। ताकि जब भी नीचे फंक्शन होगा ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आती है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। तो नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया और सी एक ही बात हम लोग यूज़ करते हैं। ये अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इकट्ठे रूल्स यूज़ हो रहे हैं। एक पावर रूल यूज़ हो रहे हैं कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हो तो पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड, और अगर नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव हो तो आंसर हमारे पास क्या आता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। तो सी एक ही दफ़ा लिखते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर x ओवर ई रेज टू पावर x। एज वी नो डैट integration of e raised to power x dx is e raised to power x divided by derivative of ax plus c। तो e रेज टू पावर ax dx की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास e रेज टू पावर ax और ax का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया a। डेरिवेटिव में ये मल्टीप्लाई होते हैं बट इंटीग्रेशन में ये क्या होगा डिवाइड और साथ क्या आएगा प्लस सी। तो इस स्टेप में हम लोग दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड करेंगे। ई रेज टू पावर 2x के साथ अलग ई रेज टू पावर x को डिवाइड किया और ई रेज टू पावर x के साथ अलग डिवाइड किया। यहाँ इसकी एक पावर को खत्म कर देगा, इस स्टेप में ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, पीछे बच गया ई रेज टू पावर x प्लस 1। अलग अप्लाई हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 की इंटीग्रेशन आ गई x, साथ आ गया c। अब ई रेज टू पावर x आ रहे हैं, x नहीं आ रहा। आप सपोज करें कि यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास ई रेज टू पावर 1x, तो ई रेज टू पावर 1x आ गया और नीचे हमने अब डेरिवेटिव लेना है पावर का। तो पावर हमारे पास क्या आ रही है x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है e रेज़ टू पावर x वो वाइड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव भी e रेज़ टू पावर x होता है और e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू पावर x होती है। ये असाइनमेंट है जी आप लोगों के पास, इंटीग्रेशन ऑफ -2 e रेज़ टू पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर dx, and these are 4 parts are your assignment. These 4 parts are your assignment. Now question number 2, evaluate d by dx over square root of x plus a plus square root of x plus b। तो ये हमारे पास जब इस किस्म में फॉर्म में आएगी तो हम लोग इसको करेंगे रैशनलाइज हैं जी। प्लस साइन है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और अपोजिट साइन से डिवाइड भी करेंगे। पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ये फॉर्म बन रही है ए प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, बाकी बच गया x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। x और x कट गया, बाकी हमारे पास सिंपल क्या आ गया a माइनस बी। तो आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो a माइनस बी हमारे पास बाहर आ जाएगा, बाकी बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए रेज टू पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी रेज टू पावर 1/2 dx। अब आपको पता है जी a हमारे पास कांस्टेंट है, इसी तरह b कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव 0 होता है, बट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो ये फंक्शन है और साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, 1 लिखा हो या ना लिखा हो बार बार बताया जा रहे हैं आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर यहाँ हमारे पास 2x होता तो फिर हमें यहाँ 2 बनाना पड़ता, या माइनस होता तो हमें यहाँ वो वाली फॉर्म बनानी पड़ती। सिमिलरली x प्लस बी फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, क्योंकि x b का डेरिवेटिव क्या हो गया 0 साथ मौजूद है। तो सिंपल हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 +1 1/2 +1 1/2 +1 1/2 +1 3/2
3/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज टू 3/2 अब 3/2 रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 2/3 a माइनस बी एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। पार्ट नंबर 4, a माइनस 2x होल रेज टू पावर 3/2 dx। अब फंक्शन चेंज है, हमारे पास फंक्शन आ रहा है a माइनस 2x। a का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव होता है -2। स्टूडेंट्स क्या यहाँ -2 है हमारे पास? आंसर इज नो, -2 नहीं है। जब -2 नहीं है तो हम लोग इस पे पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म में। तो -2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2, -2 बना एंड अप्लाई इंटीग्रेशन, वी विल गेट। -2 नहीं है तो -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, -2 से डिवाइड भी करेंगे। जब -2 आ जाएगा हमारे पास तो फिर हम लोग इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे। ये डिनोमिनेटर वाला एज इट इज़ आ गया, इधर -2 साथ आ गया तो पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड प्लस सी। तो 3/2 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 5/2 और -2, ये 2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा -5, तो माइनस ऊपर लिख देंगे a माइनस 2x रेज टू पावर 5/2 ओवर 5 प्लस सी। तो ये था जी, अगर हमारे पास ये फंक्शन है तो इसमें साथ डेरिवेटिव होता है -2, तो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने -2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड वाला एज इट इज़ आ गया। मल्टीप्लाई जो किया वो हमने इंटीग्रेशन अप्लाई का ओपन कर दी, पावर रूल अप्लाई कर दिया, पावर में एक ऐड और उसी से ही डिवाइड प्लस सी, उसका सिंप्लीफिकेशन है और ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। Thank you students. If you have any question you can ask me anytime. Thank you and have